friends, welcome to your own YouTube channel, Be the Catalyst. Today, we are going to discuss a topic that is not only crucial for the RS mains examination but also plays a significant role in various other competitive exams and your understanding of the word globalization. Before we begin, make sure to hit the like button, subscribe to this channel, and ring that notification bell to stay updated with more informative content. Now, let us try to find out the essence of globalization. Globalization is a multifaceted phenomenon that has transformed the world in numerous ways, and it is a topic that you cannot afford to overlook in your examination preparations. Now, why is this topic essential for exams like RS mains and other competitive examinations? The reason is simple. Globalization is a key theme of various topics like your ability to analyze global issues and your knowledge of international affairs, as it influences economics, politics, and society in countless ways. By understanding its dimensions, challenges, and opportunities, you can better prepare for your exams and become a more informed and globally aware individual. Thank you for joining us on Be the Catalyst #Solidarity. If you found this video helpful, don't forget to hit the like button and share it with your friends who are also preparing for exams. And of course, subscribe to our channel for more informative content. Good luck with your preparations and stay tuned for more exciting topics. So let's start globalization. RS मेंस में पेपर 1 GS1 और GS1 में टॉप यूनिट 2 इकोनॉमिक्स पार्ट ए इंडियन इकोनॉमी और इंडियन ओपी में सब टॉपिक दिया हुआ है ग्लोबलाइजेशन. दिस इज इंडिया. वी प्राउड ऑन आवर कंट्री. और यूनिट 3 सोशोलॉजी में पार्ट ए में ग्लोबलाइजेशन दिया गया है. तो ग्लोबलाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. 2 जगह मेंशन किया हुआ है, GS1 में, यूनिट 2 यूनिट 3 में. यूनिट 2 में अंडर इंडियन इकोनॉमी और यूनिट 3 अंडर सोशोलॉजी. Globalization, an important topic that can be asked in many aspects. Must be prepared to attempt direct questions on about topics or value addition advantage. You have to fetch a score better than others. All the best. Globalization. To build a global economy. Globalization, to build a global economy that leaves no one behind. To build a global economy. Globalization, to build global to build a global economy that leaves no one behind. It refers to integration of the nation's economy with the world economy. Globalization, to build a global economy, इंटीग्रेशन ऑफ ए नेशंस इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी. ग्लोबल इकोनॉमी बनाने के लिए क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ नेशंस इकोनॉमी, किसी एक देश की इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जोड़ना पड़ेगा. ग्लोबलाइजेशन, टू बिल्ड ए ग्लोबल इकोनॉमी, इंटीग्रेशन ऑफ नेशंस इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी एंड फ्री फ्लो ऑफ. इंटीग्रेशन ऑफ नेशंस इकोनॉमी, किसी एक देश की इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जोड़ना है. और फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, नॉलेज, ह्यूमंस एंड इंडस्ट्रीज. कैपिटल, नॉलेज, ह्यूमन और इंडस्ट्रीज. फ्री फ्लो, वेरी इंपॉर्टेंट. लीव्स नो वन बिहाइंड. इंटीग्रेशन ऑफ ए नेशंस इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी एंड फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, नॉलेज, ह्यूमंस एंड इंडस्ट्रीज. द ड्राइविंग फैक्टर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म. ड्राइविंग फैक्टर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, democracy and capitalism. Okay, according to MEA, Ministry of External Affairs, globalization means integration of economies and societies through cross-country flows of. Integration of economies and societies. Globalization, integration of economies and societies. Integration of economies and societies through cross-country flow of information, ideas, technologies, goods,
services, capital, finance, or people. Integration of economies and society through cross-country flow of information, ideas, or technology. Goods, services, capital, finance, or people. Information, ideas, technology, goods, services, capital, finance, or people. According to MEA, globalization means integration of economy and societies through cross-country flow of information, idea, technology, goods, services, capital, and finance. People. Okay. फैक्टर्स दैट एड ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन को ऐड करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं? एक तो एलपीजी रिफॉर्म इन 1991, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स इन 1991. उसके अलावा इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी. ग्लोबलाइजेशन को ऐड करने वाले फैक्टर्स में एक तो एलपीजी रिफॉर्म 1991, उसके अलावा इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन स्किल्स. ओके. फास्ट मूवमेंट ऑफ पीपल, ये भी ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देता है. रैपिड ग्रोथ इन एयर ट्रेवल इनेबलिंग ग्रेटर मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स अक्रॉस द ग्लोब. ग्रोथ ऑफ WTO. Establishment of WTO World Trade Organization 1994 led to increase FTA Free Trade Agreement among various nations. 1994 में WTO की स्थापना हुई, उसके बाद increase Free Trade Agreement among various nations. Increase mobility of capital. General reduction in capital barrier. Mobility of capital ऐड करेगा ग्लोबलाइजेशन. जनरल रिडक्शन इन कैपिटल बैरियर. ईजियर फॉर कैपिटल टू फ्लो बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज. एक देश से दूसरे देश में कैपिटल का ईजियर फ्लो होगा, रिडक्शन इन बैरियर होगा, तो ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा. ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स. अपने देश से निकल के दूसरे देशों में इंटरनेशनल इंटरकॉन्टिनेंटल इंटरकनेक्टेडनेस इन ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स. ठीक है. इंक्रीज इन MNC मल्टीनेशनल कंपनीज. Multinational companies source resources around the globe and sell their product in global markets, leading to greater local interactions. तो MNC क्या करती है? दुनिया भर में अलग अलग जगह पे अपने ऑफिसेस, फैक्ट्रीज वगैरह ऑर्गेनाइजेशन खोलती है, वहाँ सेटअप खोलती है, तो वहाँ के लोकल रिसोर्सेज को यूज़ में लेकर अपने प्रोडक्ट्स बनाती है जो कि ग्लोबल मार्केट में भेज जाते हैं विद ग्रेटर लोकल इंटरेक्शन. तो MNC इंक्रीज होगी तो ग्लोबलाइजेशन को ऐड होगा. ग्लोबलाइजेशन को इंक्रीज और इन्हांस करने में बड़ा फैक्टर रहा है. 7वां पॉइंट है इंटरनेट. इंटरनेट इनेबल्स फर्म्स टू कम्युनिकेट ऑन अ ग्लोबल लेवल. कंज्यूमर्स एबल टू ऑर्डर मोर गुड्स ऑनलाइन. इंटरनेट है तो ईजियर टू कम्युनिकेट एट ग्लोबल लेवल एंड कंज्यूमर्स एबल टू ऑर्डर मोर गुड्स ऑनलाइन. तो ये हो गए अपने 7 पॉइंट्स. एक बार फिर से रिवाइज करेंगे. फैक्टर्स दैट एड ग्लोबलाइजेशन को ऐड करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से? पहला तो एलपीजी रिफॉर्म 1991, दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, न्यूमेरिकल एंड एनालिटिकल, कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन स्किल्स. थर्ड, फास्ट मूवमेंट ऑफ पीपल थ्रू एयर ट्रेवल, पीपल एंड गुड्स अक्रॉस द ग्लोब. फोर्थ, ग्रोथ ऑफ WTO after 1994 led to increased free trade agreement among various nations. Fifth, increased mobility of capital, reduction in capital barrier, different countries, easy flow, global interconnectedness, global financial markets, increase in MNC source resources around the globe and sell their products in global markets, leading to greater local interaction. और 7th, internet enables firms to communicate on global level and consumers able to order more goods online. अगला है फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन को कंट्रीब्यूट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से? एक तो हिस्टोरिकल फैक्टर क्या रहा है कि ट्रेड रूट्स वर मेड ओवर द ईयर्स. सिल्क रूट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. हिस्ट्री से ही पता है सिल्क रूट जो कि चाइना से लेके और वेस्ट की ओर गया. ये हिस्टोरिकल फैक्टर्स है. अगला इकोनॉमिकल फैक्टर्स. कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड वैल्यूज टू द एंड यूजर्स डिटरमाइन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड वैल्यू एडिशन. कॉस्ट ऑफ गुड्स वैल्यूज टू एंड यूजर डिटरमाइन. अच्छा, एंड यूजर के पास जितना कॉस्ट ऑफ गुड्स पहुंचेगा, जहाँ पे एंड यूज़र की डिमांड होगी वहीं पे गुड्स का आवागमन होगा. तो मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड वैल्यू एडिशन इकोनॉमिक फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. इकोनॉमिक जहाँ की साउंड होगी, जहाँ पे डिमांड होगी, वहाँ पे गुड्स जाएंगे, तो मूवमेंट ऑफ गुड्स होगा और ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा. रिसोर्सेज एंड मार्केट फैक्टर्स. नेचुरल रिसोर्सेज, मिनरल्स, कोल, ऑयल, गैस, ह्यूमन रिसोर्सेज, वाटर एट्सेट्रा. ठीक है, ये जहाँ पर होंगे वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग होगी, वहाँ से
सप्लाई होगी। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स टू इन्हांस द ग्लोबलाइजेशन, stage of technology give rise to import or export of products and services. India exports software related services to advanced countries like USA, UK, etc. तो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स भी है। सॉफ्टवेयर सर्विसेज कौन प्रोवाइड करा रहा है? इंडिया टू एडवांस नेशंस, जबकि एडवांस नेशंस यूएसए, यूके, ताइवान वगैरह ये सब हार्डवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। ओके, आगे चलो। चैलेंजेस ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, इंक्रीज इन पॉलिटिकल क्राइसिस एंड ग्लोबल कन्फ्लिक्ट। Globalization 4.0 have mixed results, tech driven global connections, but political crisis, global level conflicts. ग्लोबलाइजेशन से क्या क्या चैलेंजेस हो रहे हैं? तो पहला पॉलिटिकल क्राइसिस और ग्लोबल कन्फ्लिक्ट हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन 4.0 ये मिक्स रिजल्ट्स दे रहा है। टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन तो है ही, जिसमें एआई है, बिग डेटा है, ठीक है, मशीन लैंग्वेज है, रोबोटिक्स है, ये टेक ड्रिवन है। ग्लोबल कनेक्शंस है, पॉलिटिकल क्राइसिस है, ग्लोबल लेवल कॉन्फ्लिक्ट्स है। ग्लोबल लेवल कॉन्फ्लिक्ट्स है अभी इसराइल और फ़लस्तीन का जो वॉर चल रहा है, उसके अलावा रशिया यूक्रेन वॉर है, ठीक है। इंक्रीज इनइक्वलिटी, ग्लोबलाइजेशन का चैलेंज ये भी है, इंक्रीज इनइक्वलिटी। ग्लोबलाइजेशन मेड द रिच रिचर वाइल मेकिंग द पुअर पुअरर। ग्लोबलाइजेशन से अमीर आदमी और अमीर बन रहा है, गरीब आदमी और गरीब बन रहा है। द रिचेस्ट 20% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन कंज्यूम्स 86% ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज वाइल रिमेनिंग 80% कंज्यूम जस्ट 14%। 20% जो रिचेस्ट पॉपुलेशन है वो दुनिया के 86% रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रही है, जबकि 80% रिमेनिंग पॉपुलेशन है वो जस्ट 14% रिसोर्सेज पर ही सर्वाइव कर रही है। तीसरा इंटरडिपेंडेंस, ये भी एक चैलेंज है। इट कॉजेज लोकल और ग्लोबल इंस्टेबिलिटी ड्यू टू लोकल इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस एंड अप इम्पेक्टिंग ए लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज। ग्लोबलाइजेशन होने से जैसे अरब से हम क्या कहते हैं, केवल तेल निर्यात कर रहे हैं, तेल आयात कर रहे हैं, तो इम्पोर्ट ऑफ ऑयल फ्रॉम अरब कंट्रीज स्पेशली फ्रॉम सऊदी अरेबिया। तो इंटरडिपेंडेंस बढ़ती जा रही है। ऑन नेशनल सोवरेनिटी, ग्लोबल फर्म्स एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर थ्रेट टू सोवरेनिटी। जैसे ग्लोबल फर्म जैसे फेसबुक है, मेटा है, इंस्टाग्राम है, इसके अलावा गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, इनमें क्या बिग डेटा, डेटा प्रिवेसी, तो ये ग्लोबल फर्म्स अपनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये सोवरेनिटी को थ्रेट करते हैं। रियल थ्रेट टू स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स, ग्लोबलाइजेशन हैज़ अलर्टेड द विलेज एंड एसएसआई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड ह्यूज कंपटीशन टू विथस्टैंड अगेंस्ट एमएनसीज। तो बड़ी बड़ी एमएनसीज अपने बड़े बड़े प्लांट इंडिया में लगा लेती है, तो इससे जो इमर्जिंग एसएसआईज है, स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स है, उन्हें सर्वाइव करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो ये भी रियल थ्रेट है ग्लोबलाइजेशन का। अगला इंक्रीज इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये डार्केस्ट साइड ऑफ ग्लोबलाइजेशन है। वन ऑफ द ह्यूमन ट्रैफिकिंग बढ़ जाता है। ट्रैफिक ह्यूमन बींग्स इनटू कमोडिटीज़ बॉट एंड सोल्ड, ग्लोबलाइजेशन की वजह से, क्योंकि इजी मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल थ्रू एयर ट्रेवल और पोर्ट शिपिंग वाटरवेज एट्सेट्रा। लोकल फार्मर क्राइसिस, एज विद WTO trading provisions, rate is much lower than that of indigenous farm products। तो WTO के ट्रेडिंग बैरियर्स बना रखे हैं, तो उसके हिसाब से भी क्या कहते हैं, ज़्यादा रेट नहीं मिलेगी इंडिजिनस फार्म प्रोडक्ट्स के लिए, तो एक्सपोर्ट सस्ता हो रहा है, तो ये भी चैलेंज है। अब इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन का इकोनॉमी पे क्या इम्पेक्ट आ रहा है वो देखना है। इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इकोनॉमी, पहला इंक्रीज द नंबर ऑफ जॉब्स एंड हायर एम्प्लॉयमेंट। ग्लोबलाइजेशन हो रहा है तो आपका मार्केट में प्रभुत्व तो बढ़ रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग को इन्हांस कर रहे हैं, सर्विसेज को इन्हांस कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ जॉब्स बढ़ेगी और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। हाई डिस्पोजेबल इनकम टू पीपल, ज़्यादा डिमांड होगी, ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, ज़्यादा सैलरी बढ़ेगी, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी।
ओके। एफडीआई, इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन, एफडीआई इंक्रीज होगा, ग्लोबलाइजेशन होने से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन होगा। न्यू इंडियन स्टार्टअप्स डोमिनेटिंग ग्लोबल मार्केट्स, इंडियन स्टार्टअप्स ग्लोबलाइजेशन की वजह से अपना विस्तार विदेशों तक करेंगे, अपने प्रोडक्ट्स को विदेशों में सेल कर पाएंगे, तो वो डोमिनेट करेंगे ग्लोबल मार्केट को। मोर चॉइसेस टू कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स के पास अब जो मार्केट बेस है वो केवल एक डोमेस्टिक नहीं रहा, वो इंटरनेशनल भी हो गया, तो ग्लोबलाइजेशन से कंज्यूमर के पास चॉइसेस बढ़ी हैं। रिमूव्ड कल्चरल बैरियर्स, ग्रेटर एंड फास्टर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंट्रीज एंड ग्रेटर कल्चरल इंटरेक्शन। पीपल का एयर ट्रेवल हो गया ज़्यादा से ज़्यादा, डिमांड सप्लाई गुड्स की प्रति, गुड्स और सर्विसेज के लिए अब कोई बैरियर नहीं है। कैपिटल फाइनेंस मार्केट आपस में जुड़े हुए हैं, ट्रांसपोर्ट जुड़ा है, कम्युनिकेशन जुड़ा है, फाइनेंशियल मार्केट्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो फिर कल्चरल बैरियर्स कैसे हो सकता है, तो ये रिमूव हो जाएगा और ग्रेटर कल्चरल इंटरेक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, एफडीआई आएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ बढ़ेगा। फास्टर डेवलपमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, रोड्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, इंश्योरेंस। ओके, अब नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इकोनॉमी, ये तो पॉजिटिव इफेक्ट हुए, तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं पॉजिटिव इफेक्ट क्या क्या हुए। इंक्रीज द नंबर ऑफ जॉब्स एंड हायर एम्प्लॉयमेंट, हायर डिस्पोजेबल इनकम टू पीपल, इंक्रीज एफडीआई, न्यू इंडियन स्टार्टअप्स डोमिनेटिंग ग्लोबल मार्केट्स, मोर चॉइसेस टू कंज्यूमर्स एंड रिमूव्ड कल्चरल बैरियर्स, एंड लास्ट इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ। ये तो पॉजिटिव हुए। अब नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी क्या क्या है। श्रिंकिंग एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर श्रिंक होता जा रहा है ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से, क्योंकि दुनिया भर की इंडस्ट्रीज यहाँ पे लग रही है, दुनिया भर के वेरियस गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और सर्विसेज में पीपल एंगेज्ड है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर श्रिंक होता जा रहा है क्योंकि लैंड भी कम होती जा रही है। और इसके अलावा क्लाइमेट चेंज है, वेरियस अदर फैक्टर्स है फॉर श्रिंकिंग एग्रीकल्चर सेक्टर। सेकेंड पॉइंट, प्रॉब्लम ऑफ फ्यू जॉब्स एंड हायर अनएम्प्लॉयमेंट, ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से लोग इंडिया में आ रहे हैं, तो यहाँ के जो जॉब ओरिएंटेड मार्केट और सेक्टर्स है उनमें बाहर के लोगों का पेनिट्रेशन हो रहा है, और ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से एडवांस टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं और फॉलो अडॉप्ट किया जा रहा है। ऐसा करने से मैनुअल वर्क में और स्किल्स में कमी आती जा रही है, इस वजह से जॉब्स कम रह गई हैं और हायर अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट की रेट बढ़ गई है, जॉब्स कम हो गई है ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। एग्रीकल्चर सेक्टर भी श्रिंक होने लगा है। इंक्रीजिंग हेल्थ केयर कॉस्ट, हेल्थ केयर कॉस्ट भी बढ़ रही है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से गुड्स और पीपल का जो इजी मूवमेंट है उस वजह से, जैसे कोविड-19, इबोला वायरस, इस तरह के वायरस का पेंडेमिक हो जाना हेल्थ केयर कॉस्ट को बढ़ाना है, और ये उसका इकोनॉमी पर नेगेटिव इफेक्ट है। चाइल्ड लेबर, ये भी बड़ा रीज़न है। अब इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, अब आपसे पूछ ले कि ग्लोबलाइजेशन का एग्रीकल्चर पे क्या इम्पेक्ट आ रहा है, तो पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट देखते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं पॉजिटिव इफेक्ट। पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, इंक्रीज नेशनल इनकम। ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से जहाँ जहाँ पे भी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी आई है वहाँ से हम अडोप्ट करेंगे, जैसे न्यू सीड्स, हाइब्रिड सीड्स, न्यू सीड्स हमें अवेलेबल हो पा रहे हैं। न्यू टेक्नोलॉजी, इंक्रीज फार्मर एग्री प्रोडक्ट्स, तो ग्लोबलाइजेशन का एग्रीकल्चर में पॉजिटिव इफेक्ट है कि नेशनल इनकम बढ़ रही है। कैसे है कि न्यू सीड्स आएगी तो हार्वेस्ट ज़्यादा होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, न्यू टेक्नोलॉजी से ईजियर होगा, फास्टर होगा, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, फार्मर एग्री प्रोडक्ट्स इंक्रीज होंगे। सेकेंड पॉइंट, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। एग्रीकल्चर का फूड प्रोसेसिंग में जाना, रॉ मटेरियल से उसको आगे की ओर सेकंड स्टेज में ले जाना, स्टैंडर्डाइजेशन, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग करना, एक्सपोर्ट पर्पस की वजह से ग्लोबलाइजेशन हो, तो एक्सपोर्ट करेंगे तो स्टैंडर्डाइजेशन में, प्रोसेसिंग में, पैकेजिंग में हमें काम करना होगा, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ग्लोबलाइजेशन की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। एक तो नेशनल इनकम बढ़ेगी न्यू सीड्स, न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने से, फार्मर एग्री प्रोडक्ट्स को इंक्रीज करने से। सेकंड,
फार्मर एग्री प्रोडक्ट इंक्रीज होंगे, उनको एक्सपोर्ट करने के लिए स्टैंडर्डाइजेशन, प्रोसेसिंग और पैकेजिंग करना होगा, जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। थर्ड, इंक्रीज इन शेयर इन ट्रेड। बिकॉज ऑफ कंडीशंस ऑफ WTO, all the countries get the same opportunities, so there is an increase in the export of agri products। सभी कंट्रीज को बराबर का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, तो ऐसा करने से एग्री एक्सपोर्ट करने की रेट बढ़ जाएगी ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल मार्केट में। तो इंक्रीज इन शेयर इन ट्रेड। फोर्थ पॉइंट है इम्प्रूव फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, इनहांस लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ फार्मर्स। अगर हमारे प्रोडक्ट को, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को फूड प्रोसेसिंग करेंगे तो वो ज़्यादा समय के लिए नॉन पेरिश बना रहेगा, काम में लिया जा सकता है और उसे एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को इम्प्रूव करने के लिए ग्लोबलाइजेशन होना ज़रूरी है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो पाए। और फूड प्रोसेसिंग होने से लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, क्योंकि इनकम तो बढ़ने वाली है। अब नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, ये देखते हैं। स्मॉल प्रोडक्शन फील्ड, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। पर्सन उतना ही है, फील्ड छोटा रह गया, ज़्यादा लोग उसमें काम कर रहे हैं, तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, अनफेवरेबल इम्पैक्ट ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। IPR का जो यूज़ कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, वेरियस ब्रीडिंग मेथड, हाइब्रिड सीड्स के निर्माण में, और जो प्लांट ब्रीडिंग हो उसमें, और जनरेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, जेनेटिक मॉडिफाइड सीड्स में, इसमें जो IPR का यूज़ ले रहे हैं, तो उस वजह से अनफेवरेबल इम्पैक्ट आ रहा है इंडियन एग्रीकल्चर पे। थर्ड पॉइंट, कैश क्रॉप डिमांड एंड सप्लाई, इंक्रीज फार्मर फोकस ऑन दीज क्रॉप्स, डेविएट फ्रॉम फूड क्रॉप्स एंड सीरियस कंसर्न ऑन नेशनल फूड सिक्योरिटी। कैश क्रॉप्स बढ़ा रहा है किसान, तो एक्सपोर्ट तो कर पा रहा है, लेकिन डोमेस्टिक नेशनल फूड सिक्योरिटी को इस्टेब्लिश करने में वो नाकाम हो रहा है, क्योंकि वो कैश क्रॉप्स बढ़ाने की वजह से फूड क्रॉप्स में कल्टीवेशन में कमी आ रही है। तो ये भी एक सीरियस कंसर्न है। अब देखो इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन कल्चर, तो हमने देखा इकोनॉमी पे क्या इम्पेक्ट आया, एग्रीकल्चर पे क्या इम्पेक्ट आया, ग्लोबलाइजेशन का पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब देख रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन कल्चर, कल्चर पे क्या इम्पेक्ट आ रहा है। तो फैमिली स्ट्रक्चर पहले जॉइंट हुआ करती थी, अब न्यूक्लियर हो गई ग्लोबलाइजेशन की वजह से। मैरिज वैल्यू, मैरिज वैल्यू में यूँ कि मच एविडेंस ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ डाइवोर्स केसेज एंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। ये भी ग्लोबलाइजेशन के वेस्ट कंट्रीज़ का फॉलो कर रहे हैं। डाइवोर्स केस बढ़ रहे हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बढ़ रहे हैं, पहले ऐसा नहीं था। एडल्टरी, फ्रेंडली अप्रोच एंड सोशलाइजिंग फीचर इज अप्रिशिएटिंग। ओके, फ्रेंडली अप्रोच एंड सोशलाइजिंग फीचर इज अप्रिशिएटिंग, बट टोटल ब्रेकआउट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस हैव अडल्टरेटेड इंडियन माइंडसेट। नेगेटिविटी कहाँ पर है, प्रॉब्लम कहाँ रही, टोटल ब्रेकआउट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, ये अडल्टरेट कर रहा है इंडियन माइंडसेट को। ऐसा करने से इंक्रीजिंग केस ऑफ रेप्स एंड सेक्सुअल अब्यूज। ओके। फोर्थ, इम्पैक्ट ऑफ फूड, जंक फूड इंक्रीज, हेल्थ डिसऑर्डर इंक्रीज। और फिफ्थ है वल्नरेबल ओल्ड कम्युनिटीज़, ओल्ड एज होम लगातार बढ़ते जा रहे हैं इंडिया में ग्लोबलाइजेशन से। पहले नहीं था, ओल्ड एज की पहले अच्छे केयर करते थे, अब लोग बाग वल्नरेबल होते जा रहे हैं ओल्ड एज में। फेस्टिवल, सेलिब्रेटिंग वैलेंटाइन डे, फादर डे, फ्रेंडशिप डे, तो ये भी क्या कहते हैं ग्लोबलाइजेशन का ही इफेक्ट आया है। तो इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन कल्चर, एक तो फैमिली स्ट्रक्चर जॉइंट से न्यूक्लियर हो गई, सेकंड मैरिज वैल्यू ये डिक्रीज हुआ है, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और डाइवोर्स बढ़े हैं। थर्ड, अडल्टरी में फ्रेंडली अप्रोच एंड सोशलाइजिंग फीचर्स अप्रिशिएटिंग, बट ब्रेकआउट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस हैव अडल्टरेटेड इंडियन माइंडसेट, इंक्रीज केस ऑफ रेप एंड सेक्सुअल अब्यूज। फोर्थ, इम्पैक्ट ऑफ फूड, जंक फूड इंक्रीज कर रहे हैं, हेल्थ डिसऑर्डर को भी इंक्रीज कर रहे हैं। फिफ्थ, वल्नरेबल ओल्ड कम्युनिटीज, ओल्ड एज होम इंक्रीज हो रहे हैं। सिक्स, फेस्टिवल, सेलिब्रेटिंग वैलेंटाइन डे, फादर डे, फ्रेंडशिप डे। अब रिवाइवल ऑफ कल्चर कैसे करेंगे या ग्लोबलाइजेशन से रिवाइवल ऑफ कल्चर कैसे हो रहा है।
तो योगा, आर्ट ऑफ लिविंग फॉलो किया जा रहा है पूरे कंट्रीज़ में, ठीक है। आयुर्वेदिक मेडिसिन, ये पूरे ग्लोबल लेवल पे इनका विस्तार हो रहा है। फॉलो ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन, इंक्रीज डिमांड ऑफ लोकल हैंडीक्राफ्ट्स जैसे चिकनकारी, बंदानी, तो ये भी कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन से इनकी भी आउटरीच हुई है। इंक्रीज ग्लोबल टूरिज्म, ओके, कल्चर से ग्लोबल टूरिज्म को बढ़ावा मिल रहा है। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन वुमन, वुमन के ऊपर क्या है, इकोनॉमी पे क्या है, एग्रीकल्चर पे क्या है, कल्चर पे क्या है। अब है वुमन में इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या है। इंक्रीज द एवरेज वेज गिवन टू वुमन, वुमन को दिए जाने वाले वेजेस में, एवरेज वेजेस में इंक्रीज हुआ है, इन्हांसमेंट हुआ है। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एमएनसीज में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ी है ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। इंक्रीज इन चॉइसेस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। इक्वल पार्टनर्स इन contribution to service sector due to globalization. Education of women, absolutely. Technology is served to women, absolutely. And participation in social political system enhances. लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों में सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम में पार्टिसिपेशन बढ़ा है वुमेन का ग्लोबलाइजेशन से। वुमेन ग्लोबलाइज्ड होने से रूरल एरिया में क्या हुआ, एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर में शिफ्ट हुई है। अर्बन में क्या हुआ, बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड हुई है और लीड टू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ा है। दलित वुमेन में क्या, लिटरेसी बढ़ी है और कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशंस घटे हैं। और ट्राइबल में इंक्रीज एक्सेस टू हेल्थ केयर एंड इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, ये सब है। तो ग्लोबलाइजेशन का वुमेन में क्या इम्पेक्ट आ रहा है, एक तो एवरेज वेज बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, एमएनसी में चॉइस और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ रहे हैं। अगला, इक्वल पार्टनर इन सर्विस सेक्टर में कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, एजुकेशन वुमेन बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी इज सर्व टू वुमेन, पार्टिसिपेशन इन सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम इन्हांस हो रहा है। इसके अलावा रूरल में एग्री टू नॉन एग्री में जा रहे हैं, अर्बन में क्वालिटी एजुकेशन बढ़ रहा है, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट इन्हांस हो रहा है, दलित में लिटरेसी बढ़ गई और कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन घटे हैं। ट्राइबल की बात करें तो इंक्रीज एक्सेस टू हेल्थ केयर एंड इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, ये ग्लोबलाइजेशन से इम्पैक्ट आ रहा है वुमेन के ऊपर। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन और वुमेन, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है ग्लोबलाइजेशन का वुमेन के ऊपर, डुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑफिस एंड हाउस होल्ड चोर्स, ऑफिस का काम संभालो फिर घर का काम संभालो। एक्सप्लॉयटेशन ऑन वर्क प्लेस, सेक्सुअली हरास्ड, इसके लिए विशाखा गाइडलाइंस भी बनाई हुई है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्क प्लेस, सेक्सुअली हरास्ड, कमोडिफिकेशन ऑफ वुमन, पेट्रियार्कल माइंडसेट, वायलेंस अगेंस्ट वुमन, कमोडिफिकेशन ऑफ वुमन हो गया ग्लोबलाइजेशन की वजह से। अदर इम्पैक्ट देखो क्या है, प्रोस्टिट्यूशन बियॉन्ड द बॉर्डर्स, अब्यूज़ एंड डॉलर रिलेटेड सुसाइड्स। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन वुमन, डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑफिस एंड हाउस होल्ड चोर्स, एक्सप्लॉयटेशन ऑन वर्क प्लेस, सेक्सुअली हरास्ड, कमोडिफिकेशन ऑफ वुमन, पेट्रियार्कल माइंडसेट एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमन। एंड अदर इम्पैक्ट की बात करें तो प्रोस्टिट्यूशन, अब्यूज़ एंड डॉलर रिलेटेड सुसाइड्स, ये हुआ है। तो हमने क्या क्या पढ़ा ग्लोबलाइजेशन का, एक तो इसकी डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है, इसके अलावा इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी, इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, इम्पैक्ट ऑन कल्चर, इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन, इन सभी के पॉजिटिव एंड नेगेटिव आउटकम ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। इन नेक्स्ट एपिसोड वी विल फोकस ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स इन रैपिड मैनर, ग्लोबलाइजेशन 4.0 और इसके क्या चैलेंजेस है, और प्रीवियस वेव्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन 1, 2, 3, 1.0, 2.0, 3.0 क्या क्या था इनमें, अब 4.0 है तो वो क्या है और चैलेंजेस क्या हैं। हम रैपिड मैनर में पढ़ रहे हैं, फटाफट मेंस के एग्ज़ाम्स के लिए समरी जैसा हम आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं, मेन पॉइंट टू पॉइंट। इसके अलावा डी ग्लोबलाइजेशन क्या होता है इसको भी ओवरव्यू कर लेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बी द कैटलिस्ट, बी हैप्पी, #solidarity, united we are. Thank you very much.